it will be great. And whatever I spoke yesterday, there'll be little more deeper insights into what we are trying to do. So the first thing that we are trying to do here, brothers, is to address the learning gap. We know that there are a lot of people who want to do good in society, and there's a lot of information out there on YouTube and other media, but we don't know how to use that information. You don't know whether that is good for us. We don't know how to apply that information. So we are trying to get a community forum going where many of us who understand the subject deeply will take out the relevant information, the real useful, leave the complexity out, make it very simple. So the person who's accepting or going through that information, finds it extremely useful. All the complications have been dropped. Yes, this is correct. This works, and let's improve. I have suffered so much. Now I've started making videos and I've started using Canva. I could have done so much more in this world had I known the skills earlier. But there was some mental block, no one to guide me. Then finally I did something and we learned. So I hope that this community will be we will actually ask you this simple question in some time, in this week. That please tell us 3 things you want to do so much good, or 3 things that you want to learn, which can make you, empower you to do good to yourself and to good to others. And we will make a bank of that, and we'll see how to design programs around that so that you can benefit from that. Okay, so the idea is to make us heartful influencers. We will see in the last why I'm using the word heartful, about what is the beauty about this word heartful. Okay, next slide, brother. So the second objective that I want to talk about is that we have to be very heartful earners also. We are seeing that in this life, honesty and integrity is taking a back seat because people are isolated. An honest person there and here and there, and they're not able to really stand out. There's too much pressure, and they are not able to stand out on their own. On one side, now we have information technology, which is giving rise to a lot of earning opportunities. And if you can skill yourself and you can start multiple sources of income apart from whatever you are doing, then over a time you will come to a point where you are empowered with money, with money making skills. And perhaps you may not need the money. You may be in a state, you may be in a position in life where you don't need it. That's great. But for those who need it and who are feeling the pressure that I'm not able to live my vision lifestyle. Now, what is a vision lifestyle? Most of the people here are passionate people. They have some urge in their heart to do something. But because of the whole life's chucky, they are not able to get out of it. So how can we take those micro steps that within a few months, say 18 months from now, 2 years from now, 6 months from now, and if you're really smart, 3 months from now, you can come out of this rat race slowly and start living a vision lifestyle. Vision lifestyle is your lifestyle which can help you achieve the vision. It gives you the time and the resources to invest in the vision. Otherwise, everything that we are going to say is just going to be words. Whatever you say is going to be words. It's going to be a silent aspiration. Arey, how I wish, agar mere paas ye hota to, agar time hota to, paisa hota to, agar mere paas community hoti to, mere ko help milta to. So that to thing, let's try to see if we can do something about it. So we want to create this sort of earning opportunities for people to empower themselves and to earn. So third thing is the aspect of giving. There are 2 ways you can actually really give. I mean, this is maybe community can educate me on more ways, but I categorize it in 2 ways. The first way is, like my beloved Daji, my spiritual guide, who's made so much money in life, and it lets it pour, like a river. It keeps coming and keeps going. That I think it's really a point of excellence. But till we reach there, what is the other aspect? How do we do this? What do we do? Can we create a model where the earning part and the giving part is in the model itself, where you make a great product or service and you make money out of it, and also a great cause gets benefited when people buy, so that no one feels a strain. It's like it's just happening automatically. So many things. So this model has been
there in my mind for a while. But you see, alone it cannot be done. It needs a community. It needs a team which says, yes, we are going to do this. This is a great idea. So that's the third objective of this community. Now, now some little more insight. Why do we need a forum itself? ये community की ज़रूरत क्या है? Why this initiative in the first place? So, एक बहुत बड़ी important agenda item है कि हमें बहुत कुछ मालूम है. I hope most of you, how many of you don't understand Hindi? Because today we'll be switching between Hindi and English seamlessly. If there's anyone who doesn't understand Hindi at all, please say, put in a chat box, English only. So, we'll know your taste. Okay? So, people who are, people who are the famous movie in Matrix, which says there's a difference between knowing the path and walking the path. All of us know what is good, but are we able to walk that path of goodness? And this forum is about goodness applied, and the goodness could be anything that you define, whatever you think is good. For many of us, heartfulness is good. We will live and die for heartfulness. Okay, great. But for somebody, something else may be good. Feeding the poor, or making orphanages, or helping, or just taking good care of the elderly, or taking good care of your own parents. That may be, he wants to motivate people to take care of your parents. That is the idea of goodness. Go ahead, say whatever you think is good, whatever is the heart's calling, but apply it. So this forum is about application. The knowledge sharing is there, but the real focus will be application. We evolved into a forum that applies goodness applied. The second, I know, and if you know such forums who exist in the world, please connect us to them. We'd love to connect with them, who are not talking only giving knowledge, but applying knowledge, and enable people to become, appliers of, goodness applied. Okay. So the second thing is, the second reason why a forum is necessary is that, united we stand and divided we fall. We all know that if we are a single stick, we can break. But if we are a bunch of stick together, and we stick together as a community with our values, with a code of honor, then it's difficult to shake us. One candle can give so much light, but if there are, thousands of candles together, it can create an oasis of light. So this is the second reason the forum is necessary, so that we can, come together. My teacher says there is no unity among terrorists, and the evil people work together. Why are the good not working together? Why are we scattered? Why are we into the shadows? Why are we not helping each other, brother and brother, sister and sister together for one vision, one cause, goodness, goodness, goodness? It is said that the reason for the negative things and evil to spread in the world is not necessarily because evil is strong. It's because good is weak. The good doesn't come out. They are not standing out. It's time to come out of the shadows. The era of the heart is here. Things are changing. I've been hearing great management gurus on it. They're saying it's changing. Now we are moving beyond the information technology, and we are getting into the intuitive space. Later, we will discuss these things as we do more program. But that's the reason why this forum exists. To make a united punch. Also, as we in our journey, we know that there are ups and downs. There are motivation and demotivation. If you're a part of this community, which keeps meeting every week, which keeps sending messages, you're not alone. There's always some motivation coming from here, coming from there. So it's good to be in touch with people who are continuing to motivate you and take you in that direction. So that's another reason why the forum is necessary. Now, the last part of my thing today is that why are you using the word heartful? What is this? We tried very hard to find another word, but we couldn't just get another word. So we had to use this word heartful, which really signifies what we're trying to do. You see, the word heartful is really means that, unlocking the resources of your heart. The goodness doesn't have to come from outside inside. All of us know कि हमको मालूम है कि सही क्या है. हमको मालूम है कि, there's intrinsic awareness, there's intrinsic consciousness in our heart. From inside, we know this is right, this is wrong. So the heart is the repository of goodness, or as my teacher says, it is the intrinsic, it has all the intrinsic goodness of human beings. It is there in the heart. So it is actually, unless we keep referring to our heart and unlock it, this goodness cannot come from outside. It has to come from inside. Therefore, it is heartful. Second is, in my 24 years of Sahaj Marg journey, Sahaj Marg is a system of meditation that I follow, which is also called heartfulness.
I have found that the heart, as you keep going heart deeper and deeper into consciousness, it reveals, enormous secrets. A lot of things, which you would have taken a wrong path. It just gives you the, more shortest route to reach that path. So there are so many resources inside, and what we intend to do, we can achieve it 10x, 100x times if we can unplug the resources of our heart. Have faith in that. Uh, Deepak here is a practitioner of heartfulness, and Amit Bhai is also practicing heartfulness. I am been practicing for more than 20 years. Me and Deepak Bhai are trainers also, and we really recommend this system, the heartfulness system of meditation, to all those who are still not meditating. And it's really our strong meditation. It's a strong recommendation. Just go to the website heartfulness.org and go take the 3 master classes and start your journey. It's free. Heartfulness is a beautiful spiritual movement, and they don't charge money for this self-enablement meditation, which you can call it self-realization, you can call it God realization if you like to, but it's all about self-development, becoming the best me that you can be. So I highly recommend it. And in case if somebody here wants to start meditation, me and Deepak, will help you start the meditation, because that's our duty as trainers of the heartfulness system. So, now and then we'll keep referring to heartfulness, but if you're practicing something else and you really feel that's great, it's just good. Anything which you're convinced about and is working for you, it's just a great idea. So, the last appeal is, as many of you are going to watch this recording, there were 80 people who registered for this webinar, and we have 33 here. I think they're all expecting the recording. Let me tell you all that initially we're going to give the recording and we're going to stop. We expect a certain amount of energy level in webinars, and I hope, and I really fervently appeal, please join. I understand there are 3 webinars back to back. Not everyone can join everything, but as we go, at least weekly webinars that we hold once in a while, please do attend that. And those who are watching this recording, and those who are live, it's my sincere appeal that if you resonate with the messages, if you resonate with the objectives, come forward. Become brother Amit here. He just heard the idea and he jumped in. And he's been he's already, he's acting like not by acting, he's our co-visionary. This is what we want. It resonates, don't take time, do it. And I feel very humbled, that people of his stature and, I would like to, join this, and they're contributing. And my appeal goes out to all of you. Please, this is not something that can be done with 1 or 2 or 3 people. That is why I keep calling it as an experiment. If you don't want this experiment to fail, jump in. We're not asking for money. We're not asking. No. We're asking you for your time, your knowledge, your ideas. If you are a good knowledge giver, you can be a knowledge giver. And so it's like that. And finally, remember, it's an experiment that all the community must shoulder and take it forward and make it happen. So with this little thing, I call upon Brother Amit to do his presentation. I remember Amit, I had gone to Jaipur on some work given by my mission, and he was my host over there. And that's how I came to know this beautiful heart. You'll be amazed at the control that he has on this subject. I will let you discover it for yourself. What a brilliant person he is. And in this heartfulness community, language is not a barrier, your packaging is not a barrier. If you're acha, I forgot, it's okay. Hum log sab ghar ke hain, there's no problem. But if you have something to say which can be useful to the community, come forward. Don't worry about anything else. Your presentation style, English kitna hai, Hindi kitna hai, doesn't matter. As long as the group is understanding your message, we stand by you and we want to learn from you. So, okay, Amit, all yours, and please teach us what you have to teach. You're all ready. Thank you. Thank you, Vishal Bhaiya. Thank you, Deepak Bhaiya. Thank you very much. और आज मैं इस पूरी बातचीत में जिस भाषा को प्रयोग करने वाला हूँ, मेरे हिसाब से अपने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वो भाषा यूज की जाती है, वो ना हिंदी है ना इंग्लिश है, वो इंग्लिश है। तो हम लोग इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपस में कनेक्ट रहें, और जैसा विशाल भैया ने बताया कि एक परिवार, एक फैमिली है जहाँ हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ कुछ हेल्प करेंगे। और मैं आप लोगों से
एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरी वेबिनार में जो आने वाले 40 मिनट है, बिलीव मी, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे आप कुछ भी काम करते हो। पर मुझे आपसे 3 चीजें चाहिएगी। पहली चीज, आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल जिस पर भी आप काम कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना है। सेकंड, आपकी फिंगर्स। और थर्ड, आपका कीपैड या कीबोर्ड। पूरी जो हमारी वेबिनार होनी है ना, ये इंटरेक्टिव होनी है, आपको पूरा इंटरेक्शन में रहना है, साथ में कनेक्टेड रहना है। और एक बहुत अच्छी बात है, इस पर्टिकुलर वेबिनार में ना कोई भी बैक बेंचर नहीं है, हम सब एक सर्किल का हिस्सा है और जूम ने एक हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम सब लोग कनेक्टेड हैं। क्रिएटिविटी अब सब लोगों में है और आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त बदलाव लेकर आ सकती है। तो अगर आप लोग रेडी हैं इस पूरे चेंज को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, तो जस्ट एक काम कीजिए, टाइप आर इन द चैट बॉक्स। अगर आप कीबोर्ड के साथ, अपने फिंगर्स के साथ, अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल के साथ रेडी हैं तो आर टाइप कीजिए। वंडरफुल, यू आर ऑसम पीपल। आई कॉन्ग्रेचुलेट 34% जो इस समय मेरे साथ यहाँ पर हैं। मुझे लगता है ये पूरे इंडिया के वो लोग हैं जो इस देश में क्रिएटिविटी को लेकर आना चाहते हैं और कुछ जबरदस्त हम लोग मिलकर करेंगे और उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें पूरी तरह से हमें कनेक्ट रहना है, क्योंकि आप मान के चलिए अगर ये 3 मैजिक आपने पूरी वेबिनार में करते रहे, कीबोर्ड को यूज करते रहे, टाइप करते रहे, तो एक बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में आप महसूस करेंगे। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी हमारा जीवन है। हम सुबह से शाम अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हैं। हम सुबह से शाम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। जब हम बच्चे थे और हम हमारे पेरेंट्स से कुछ डिमांड करते थे तो याद है हम कितने क्रिएटिव आइडियाज, कितने मजेदार बातें बताते थे जिससे वो काम हो जाता था। जब हमें मूवी देखना जाना होता था तो हम कैसे अपने फ्रेंड से वो चीज डिस्कस करते थे। तो हमारी लाइफ जैसे जैसे बड़ी हुई तो हमारे विजन हमारी क्रिएटिविटी से आते हैं, हमारे आइडियाज हमारी क्रिएटिविटी से आते हैं, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारी क्रिएटिविटी से आती है। चाहे आप कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हो, क्रिएटिविटी उसमें जरूरी है। और आप सब लोगों में जिनके पास भी हृदय है, हार्ट है, उन सब लोगों में क्रिएटिविटी है। तो मुझे पक्का पता है कि आप सब लोगों में क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप सब लोगों के अंदर एक अद्भुत दिल है जिसके अंदर से वो क्रिएटिविटी जन्म लेती है और हम उसको साथ में मिलकर आगे बढ़ाते हैं। पर फ्रेंड्स, हुआ क्या? भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान को बोला कि मैं तुम्हें 2 टूल्स देता हूँ। एक का नाम रखा दिमाग और एक का नाम रखा हृदय, माइंड एंड हार्ट। और वो देकर हमें इस दुनिया में भेज दिया। हमें एक काम दिया गया कि जो दुनिया आपको मिली है हमें उससे ज्यादा बेहतर दुनिया बनानी है। पर हम लोगों ने क्या किया? हम पूरी तरह से मैनेजमेंट में लग गए, हम चीजों को ठीक करने में लग गए, हम लोगों को ठीक करने में लग गए और इस बीच में हम वो भूल गए कि हमारे टूल्स का क्या हो रहा है। जो 2 टूल्स ईश्वर ने हमें दिए थे, उन टूल्स में मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रेंड्स, जैसे हम लोग हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर से सारे काम कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग खाना खाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, पर आपको पता है आपके ब्रेन और आपके हार्ट से आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। और क्या हमें पता है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको करने से मैं अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर लूंगा? आप सोचिए, एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति जाता है जिसके हाथ में एक टॉर्च है और उसका सेल ही वीक है, तो उसको कुछ भी नजर नहीं आएगा, चाहे वहां कोई भी चीज रखी हुई हो। पर अगर उसने अपने सेल को अच्छा कर लिया तो अपनी हर चीज को ज्यादा अच्छे से देख पाएगा, ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएगा। तो वही चीज हमारे अपने जीवन में होती है। और हमारे अपने जीवन में जब हम क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे तो हम पता क्या करेंगे? हम लोग वंडर्स क्रिएट करेंगे। आप चाहे म्यूजिशियन हो, आप चाहे आर्किटेक्ट हो, आप चाहे डिजाइनर हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, बिलीव मी, आने वाले 35 से 40 मिनट में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो आपकी हर फील्ड में, हर चीज में एक वंडर को क्रिएट करेगी। और मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहूंगा क्योंकि हम इस ग्रुप में साथ जुड़ पा रहे हैं और उस क्रिएटिविटी को, उस वंडर को हमारी लाइफ में लेकर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वी आर कमिटेड टू एनहांस क्रिएटिविटी इन आवर लाइफ और उस वंडर को क्रिएट करने वाले हैं। तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो क्रिएटिविटी हमारी जिंदगी में बदलाव लेके आ सकती है। तो अगर आप ये वंडर अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो अमित आज यहाँ बैठा है वो अमित कभी भी ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप के अंदर एक बदलाव नहीं लाए। और पता है, अभी कुछ ही देर में आप लोग वो बदलाव लाने वाले हैं। आप एक बहुत भयंकर चमत्कार, बहुत बड़ा मैजिक, यू आर गोइंग टू डू ए वेरी बिग मैजिक इन योर लाइफ।
और पता है वो मैजिक क्या होने वाला है? क्रिएटिविटी के 3 बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने फिंगर और कीपैड को और मोबाइल को बिल्कुल अपने पास रखिएगा, क्योंकि यही आपकी लाइफ में वो मैजिक की छड़ी आपकी नजर आएगी आपको। जो 3 क्रिएटिविटी के ऑब्स्टेकल्स हैं वो अभी आप खत्म करेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे खत्म किए। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वन वर्क। और वो ये करना होगा कि जो मैंने आपको कहा कि जो अभी यहाँ बैठे हुए नागराज भैया है, निवेदिता सिस्टर है, या एनीबडी जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अगर अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना है, हम सभी को अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना है, तो हमें अपना नया रूप बाहर लेके आना होगा। एक न्यू अमित को आज की वर्कशॉप में आना होगा, एक न्यू विशाल को आना होगा, एक न्यू दीपक को आना होगा, हर वो व्यक्ति जो भी हमारे साथ बैठा हुआ है, न्यू जगदीश को आना होगा। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, अगर आप वो वंडर लाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, पर अपने नाम के आगे एक वर्ड लगाएंगे NEW। तो जस्ट राइट, अगर आप ये वंडर लेकर आना चाहते हैं, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि सिर्फ ये लिखने से आपने कैसे उन 3 ऑब्स्टेकल को खत्म किया जो आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी को आने से रोकते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप लोगों के नाम आने लगे हैं, और आप में से जो जो लोग लिखेंगे वो तीनों, वो सभी लोग इस मैजिक को भी देखने वाले हैं। तो वंडरफुल, मैं आप लोगों के लिए क्लैप करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने एक ऑसम काम किया है। मैं बताता हूं कैसे। पहली चीज, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है नेगेटिव थिंकिंग। यस फ्रेंड्स, आप लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई है, आप लोगों ने बिलीव किया है कि हम न्यू लिखेंगे और शायद कुछ अच्छा होने वाला है, शायद कुछ चेंज होने वाला है। इसका मतलब आपने पहला ऑब्स्टेकल अपनी लाइफ का ब्रेक किया है। और यही हमारी जिंदगी हर पल हो रहा है। हर पल हम कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सोचा यार लिखूं नहीं लिखूं, बाकी लोग भी लिख रहे हैं, पर कुछ ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर कहा जा रहा है और मैं यहाँ आई गया हूं तो 40 मिनट बैठा हूं तो पूरी तरह से ही बैठ जाऊं। जब मैं हूं तो 100% रहूं, और नहीं हूं तो 99% रहने से कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया और लोगों ने लिखना चालू किया। और आप में से जो लोग बच गए हैं ना, वो अभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा ओपन चांस रहता है, हम हमेशा आगे बढ़ने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज आप लोगों ने ब्रेक की, अपनी नेगेटिव थिंकिंग ब्रेक की। तो क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारी नेगेटिव थिंकिंग। मैं मानता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग वालों ने हवाई जहाज बनाया और नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों ने पैराशूट बनाया। और फिर भी दोस्तों, हवाई जहाज बनाना पैराशूट बनाने से हमेशा ज्यादा बड़ा काम है। तो हमेशा हमें कोशिश ये करनी है कि हम पॉजिटिव रहें, हम इस बात के लिए रेडी रहें कि कुछ बेहतर होने वाला है। और सेकंड ऑब्स्टेकल जो अभी अभी आप लोगों ने ब्रेक किया है, वो आपने ब्रेक किया कि नहीं मैं वैसा नहीं रहूंगा। आपका प्रेजुडिस आपने ब्रेक किया है, आपने अपने आगे न्यू लिखा है। इसका मतलब आप रेडी हैं एक नए यू को देखने के लिए। आज जब आप मिरर में जाएंगे तो एक नया यू आपको अपना नजर आएगा, और वो इसलिए नजर आएगा क्योंकि आपने अपने प्रेजुडिस को ब्रेक किया और आपने अपने ओपन माइंड को और ओपन किया है। आप रेडी हुए हैं इस बात के लिए कि यस, मेरा न्यू मेरी लाइफ में एक नया चमत्कार करेगा। तो मैजिशियंस, ऑल मैजिशियंस जो भी मेरे साथ हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट अगेन, क्योंकि आप लोग वो कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी के सेकंड ऑब्स्टेकल को ब्रेक कर चुका है। और थर्ड थिंग जो अभी हम सब लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं, अभी एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। विशाल भैया ने कुछ देर पहले कहा कि अगर हम साथ रहेंगे ना तो बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन चीजें कर पाएंगे। और वही हम सब लोग कर रहे हैं। जब हम लोगों ने एक दूसरे को इंस्पायर किया, इस चीज को लिखा, तो हम लोग कोलैबोरेटिव अप्रोच पे काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोगों ने सुना है एक पर्टिकुलर कंपनी, और आप लोगों को इसका जवाब देना है। एक कंपनी है जिसने ना कोविड के टाइम पे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों से कोलैबोरेशन किया, और वो तेजी से वर्ल्ड के पायदान पे सबसे बड़ी कंपनी इसके अंदर आगे बढ़ती जा रही है। और आप में से कुछ लोगों को अगर उसका नाम पता है तो उसका फर्स्ट लेटर आप लिखिए, सिर्फ उस कंपनी का फर्स्ट लेटर जो अभी बहुत सारे कोलैबोरेशन कर रही है और कोविड के टाइम पे भी बहुत तेजी से आगे बढ़ पाई है। अगर आप लोग कुछ जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी है कंपनी, तो उसका फर्स्ट लेटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, यू ऑल हैविंग एक्सट्रीमली नाइस जनरल नॉलेज। तो आप सब लोग जानते हैं कि रिलायंस ने फेसबुक और गूगल जो अपने आप में हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, उन दोनों को रिलायंस ने बोर्ड में साथ में बैठा लिया। मैं रिलायंस का सपोर्ट या नहीं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच और कोलैबोरेटिव अप्रोच को। हम जब भी अपनी लाइफ में कोलैबोरेटिव अप्रोच रखेंगे, अपनी लाइफ की हर दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने कई बार ब्लॉक गेम खेला होगा। जो बचपन में एक ब्लॉक गेम बताया जाता है, उससे कई सारी चीजें लाइफ में बनती है, कार बनती है, मकान बनते हैं, आदमी बनते हैं। तो बचपन में जो हमने ब्लॉक गेम खेला है, उस ब्लॉक गेम में क्या करना होता है, एक पीस को दूसरे पीस से जोड़ना होता है।
और जब हम जोड़ते जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं, बहुत सुंदर सुंदर आर्ट पीस, बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनने लगते हैं। और वही सब कुछ हमारी लाइफ में आज होने वाला है। तो अब ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी क्रिएटिविटी अपने टॉप मोस्ट लेवल पे कब होती है। फ्रेंड्स, हमारी क्रिएटिविटी अपने टॉप मोस्ट लेवल पे होती है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसको हम लव करते हैं। जैसे कल दीपक भैया ने इकिगाई के बारे में बताया, जब आप उस चीज को ढूंढ लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आप क्रिएटिव होने लगते हैं। वो आपकी बैटरी का पहला सिग्नल है जहां आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। When we believe we are creative, आप लोग बिलीव करते हैं, you all have written new you, इसका मतलब आप लोग उसको बिलीव करते हैं, आप लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। और when we have specific time frame, आपको पता है हमारे भारत देश के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, आप सभी लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। अभी है ना, कुछ समय पहले क्या हुआ हमारे देश में और पूरे विश्व में एक प्रॉब्लम हुई जिसका नाम रखा गया कोविड। और उस चीज से बहुत क्रिएटिव आइडियाज निकल के आए। हमारी ड्रेस के साथ एक और चीज निकल के आ गई जिसको कहते हैं लोग मास्क, और उसमें भी बहुत क्रिएटिव आइडियाज निकल के आने लगे। तो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है ना तो हम बहुत नए आइडियाज के साथ काम करने लगते हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। हमने देखा होगा जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम फटाफट से उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाते हैं और उस चीज को बेहतरीन आइडियाज के साथ आगे बढ़ा पाते हैं। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन वी एक्सप्लोर आवरसेल्फ, जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जब भी हम किसी नई चीज की तरफ देखते हैं, नेट पे जाते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, किसी जगह घूमने जाते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं, जब भी हम अपने आप को एक्सप्लोर करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि हमें कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करना चाहिए, पर हम लोगों को सेल्फ डिस्टेंसिंग भी रखनी जरूरी है। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया तो हमें पता लगा कि जूम पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म से हम लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं। तो ये कैसे निकल के आया, ये क्रिएटिव आइडिया निकल के आया जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। तो इन सभी जगहों पर हमारी क्रिएटिविटी अपने फुलेस्ट पे होती है। अब ये तो हमने समझ लिया कि कैसे फुलेस्ट पे होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की सेमिनार में होने वाली है और इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरे खुद के द्वारा मैंने अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी की कुछ एक्सरसाइज पिछले 8-10 सालों से की है और उनसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट्स उठाए। तो इसमें मैंने क्रिएटिविटी फॉर सेल्फ, क्रिएटिविटी फॉर मनी, क्रिएटिविटी फॉर रिलेशनशिप, इन सब टॉपिक्स पे काम किया और इनमें अपनी लाइफ में चेंजेस महसूस किए। इन सभी चीजों को मैं पहले लेवल पे बेसिक क्रिएटिव एक्सरसाइज के रूप में आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। और याद रखिए ये सब कॉपीराइट है। कॉपीराइट मतलब आप सब लोगों को इसको कॉपी करने की पूरी राइट है। तो अगर आप इस नवरत्ना को सुनना चाहते हैं और अपनी लाइफ में वो चेंज लेके आना चाहते हैं तो जस्ट टाइप वाई, और मैं आपको ये ऐसी एक्टिविटीज बताने वाला हूं जो सिर्फ 5 मिनट अगर आप डेली करेंगे तो आपका ब्रेन शार्प होने लगेगा और आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो उसको बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ग्रेट, वेरी नाइस। आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं क्योंकि मैं चैट में आंसर्स देख पा रहा हूं। तो किसी ने कॉपीराइट को कॉपी लेफ्ट किया, इट मींस यू ऑल आर रियली क्रिएटिव पर्संस और हम लोगों को उसी क्रिएटिविटी को आज मिलकर एनहांस करना है। तो पहली एक्सरसाइज जो मंडे की है, फ्रेंड्स हम लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है, हम लोगों ने ना हर चीज को बड़ा और छोटे के अनुपात में देखना चालू कर दिया। वी ऑल ऑलवेज सी द थिंग्स इन रेशियोज। हमें लगता है कार मकान से छोटी है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से बड़ा है, एलिफेंट चींटी से बड़ा है, एंट से बड़ा है। हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में हर चीज को बड़े और छोटे के रूप में देख रहे हैं। अब आपको मंडे के दिन एक एक्सरसाइज करनी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा भी आएगा। जब आप मंडे के दिन, सोमवार के दिन सुबह सुबह बैठिए और आंख बंद कीजिए और अपने अंदर ऐसा महसूस कीजिए कि कोई भी एक चीज को लीजिए, उसको पहले बहुत छोटा महसूस कीजिए, फिर उसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा महसूस करना चालू कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने माइंड में एक पेन को विजुलाइज किया, आप ऐसा महसूस कीजिए कि वो पेन बहुत छोटा है, फिर विजुलाइज कीजिए कि वो पेन बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि वो आकाश के जितना बड़ा हो गया। ऐसे ही आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं और बिलीव मी, शुरुआत में आप जब इसको करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आप जब इसको करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अचानक आप जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे होने लग गए हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इस चीज का पता कैसे चलेगा कि मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। इसका एक बहुत आसान तरीका है, आज आप जिस भी पोजीशन में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो पोजीशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो पोजीशन, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको जैसा लगता है कि मुझे इतना याद रहता है, इतना नहीं रह पाता, मैं इतना खुश रह पाता हूँ, इतना नहीं रह पाता, जो भी हैप्पीनेस, मनी, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं वो सब पैरामीटर्स लिख लीजिए और लिख लीजिए कि आज मेरी ये कंडीशन है। फिर इस एक्सरसाइज को 1 महीने के लिए कीजिए
एंड फिर आप उन्हीं पैरामीटर्स में अपने आप को चेक कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी टॉर्च का सेल चेंज कर लिया है, और आपकी हर चीज जिसको पहले करने में आपको 2 घंटे लगते थे, आज वही चीज को आप आधे घंटे में कर पा रहे हैं, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई, आपने टूल को ज्यादा शार्प कर लिया है, टूल को ज्यादा बेहतर कर लिया है। तो अगर मंडे की इस एक्सरसाइज को आपको पसंद आ रही है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए टी। इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्यूसडे को हमें क्या करना है, मंगलवार के दिन हमें क्या करना है, 5 मिनट किस चीज के लिए देने हैं जो हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे। ग्रेट, आप में से कुछ लोग रेडी हैं। जो लोग टाइप कर रहे हैं इसका मतलब वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग टाइप कर रहे हैं इसका मतलब उनका दिल अब क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, और जब हम इस तरह से आगे बढ़ाने लगेंगे तो हमारी लाइफ में वो चेंज आने लगेगा। दूसरी जो चीज है जो हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी को रोकती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये वो कंसेप्ट्स हैं जो हमारे माइंड में जब हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं तो छोटी छोटी एक्सरसाइज से बदलने लगते हैं। दूसरी जो चीज है वो रोकती है, दैट इज कलर। हम लोगों ने चीजों को कलर्स के साथ देखना चालू किया है। हम सब लोगों की नजर में ऑरेंज का कलर सिर्फ ऑरेंज ही हो सकता है। पत्तियां, लीव्स ऑफ ट्रीज आर ऑलवेज ग्रीन, हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं। ट्यूसडे को हमें एक मजेदार एक्सपेरिमेंट करना है, और बिलीव मी इसमें आपको बहुत मजा आएगा। हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट के लिए आइज क्लोज करके बैठना है और हर चीज को डिफरेंट कलर में विजुलाइज करना है। विजुलाइज कीजिए जैसे एक ट्री है जिसकी पत्तियां सारी ब्लू कलर की है, एक ऑरेंज है जो रेड कलर का है, तो आप हर चीज को डिफरेंट कलर में विजुलाइज कीजिए। ये चीज क्या करेगी, ये चीज आपकी लाइफ में कलर बाउंडेशन को ब्रेक करने लगेगी, और जब ये कलर बाउंडेशन आपके माइंड में ब्रेक होने लगेगी तो आपकी क्रिएटिवनेस बाहर निकल के आने लगेगी, और वो ऑसम रिजल्ट लेकर आएगी। वो ऐसे रिजल्ट लेकर आएगी जो आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप कोई नई ड्राइंग बनाएंगे, जब आप कोई पेंटिंग बनाएंगे, तो आप देखेंगे मजा आ गया। आप एक बार एक सीनरी बना के देखिए ना, पूरी दुनिया की सीनरी में पहाड़ ऊपर और पेड़ नीचे और कार रोड पे ही क्यों चलती है। आप कार को हवा में चलाकर और हवाई जहाज को रोड पर उड़ाकर देखिए, मजे आएंगे। आपको खुद को लगेगा यस आई हैव डन समथिंग डिफरेंट, और वो समथिंग डिफरेंट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आने वाला है। ये आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है, ये आपको बेहतरीन बनाने वाला है। तो अगर हम आगे बढ़ने को तैयार हैं तो फिर आप लोगों को पता है आपको क्या टाइप करना है, W, दैट इज वेडनेसडे। सो मेरे को क्या है इससे पता चलता है, दैट इज द ओनली वे जैसे मुझे पता चलता है कि यस हम लोग आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो हम लोग पहुंचते हैं वेडनेसडे की तरफ। हो सकता है आप लोगों के कुछ सवाल हो, आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहो, तो हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज के एंड होने के बाद उस बारे में जरूर बात करेंगे। पर पहले मैं चाहूंगा कि हम पूरी एक्टिविटीज को समझ लें एंड फिर हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज कीप योर क्वेश्चन विथ यू, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। वेडनेसडे को हम लोगों को क्या करना है, आपको पता है हमारा जो दिल है ना बहुत सारी बातें करना चाहता है, और जब भी क्रिएटिविटी जन्म लेती है वो शून्यता से जन्म लेती है। जब हम खालीपन का एहसास करने लगते हैं ना तो क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। न्यूटन है ना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ से एप्पल गिरी, एंड उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमें फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ गया दैट इज नेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो कहाँ ही वो क्रिएटिविटी मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, वो क्रिएटिविटी बाहर से अंदर से निकल के आई थी। तो उसी तरह से आप सब लोगों के पास ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है, ऑलरेडी आपको वो सब चीजें पता है जो चीजें आज आप कर रहे हैं, सिर्फ चीजें आपके सामने रिवेल हो रही है। तो उसको ज्यादा तेजी से रिवेल करने के लिए वेडनेसडे की एक्सरसाइज आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देगी। इसमें आपको करना क्या है, घर में किसी न किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां खुलकर बोल सकते हैं, और जो भी मन में आ रहा है वो बोलते जाइए। आपको किसी को सुनाना नहीं है, सिर्फ अकेले अपने आप से बोलना है। बोलते जाइए जो कुछ भी आ रहा है, वॉट एवर यू आर थिंकिंग जस्ट स्पीक इट आउट। किसी के लिए कुछ बोलना है, कुछ अच्छा बोलना है, कुछ बुरा बोलना है, वो नहीं सोचना, दिमाग नहीं लगाना, बस बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। पहली बार ऐसा होगा कि आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद पता है क्या होगा, आपको एक ना बहुत अच्छा अंदर से महसूस होगा, एक खालीपन सा महसूस होगा, और उस खालीपन से आप आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे। आप उस खालीपन से अचानक उस क्रिएटिव आइडियाज को महसूस करने लगेंगे जो आपको चाहिए। आप अचानक देखेंगे कि आप ऑफिस में गए और जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे थे उसका आइडिया आपको क्लिक कर गया। आप अचानक देखेंगे कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व होने लग गई। यू विल सी दिस वंडर्स, एंड बिलीव मी ये वंडर्स मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं, और मैं वही एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो स्पीक इट आउट, इस एक्सरसाइज को वेडनेसडे को कीजिए। बहुत कम समय लेगी, 5 मिनट लेगी, पर आपके 23 आवर्स 55 मिनट्स को ज्यादा बेहतर बना देगी। तो अगर आप अपने टाइम और इसको आगे बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस बार टीएच टाइप नहीं करना है, आप टाइप कीजिए यस। यस मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूं, तो आपको टाइप करना है वाई।
तो मैं आपको बताने वाला हूँ थर्सडे की एक्सरसाइज। व्हाई? इट मींस मुझे अच्छा लगा, लोगों ने टीएस टाइप नहीं किया, इसका मतलब मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। तो जस्ट है ना, बीच बीच में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, तो उसको बातें करने के लिए ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, ये हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रहने में मदद करते हैं। तो थर्सडे को क्या करना है, थर्सडे इज गोइंग टू वेरी वंडरफुल इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ में वो चीज क्रिएट करेगा जो आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां लेकर आएगी जो आप लेकर आना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, इस थर्सडे के जो एक्सरसाइज है वो हम अभी साथ में मिलकर करेंगे। इसी समय हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट हमारी लाइफ में बदलता है। हमें करना यह है कि हमें अपनी अपनी जगह जहां जहां बैठे हैं आईज क्लोज करनी है। मैं कुछ बोलूंगा, उसको अपने अंदर सुनना है और उसके बाद ऐसा महसूस करना है जैसे आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। जो भी आपका सपना है, जो भी चीज को आप पूरा करना चाहते हैं, वो सपने पूरे हो रहे हैं। ऐसा ही महसूस करना है कि यस, हम लोग वो चीज कर पा रहे हैं जो बेहतरीन रिजल्ट लाती है। तो बिलीव मी, जब हम 36 लोग एक साथ ऐसा करेंगे तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपकी चीज को रिजल्ट देने में मदद करेगा। और इसको शुरू कैसे करना है, जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी जगह आप हैं, जस्ट ऐसे कीजिए हु। ये एनर्जी है, जो एनर्जी आप अपने साथ के बाकी 35 लोगों को दे रहे हैं। तो जहां भी आप बैठे हैं वहां सिर्फ आपको करना हु, और फिर मैं आपको बोलूंगा क्लोज योर आईज, और जो मैं आपको कहूंगा वो प्रैक्टिस हम लोग करके देखेंगे और फिर इसके बाद आप बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो स्टार्ट हु एंड नाउ क्लोज योर आईज। I am a creative person. Divine power is within me, and I am grateful for that. I know how to find happiness in all circumstances. I am feeling grateful as my dreams are coming true. I am ready to serve the world with my highest potential and creative abilities. मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ। ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में है और जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में खुशियों को कैसे ढूंढा जा सकता है। मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे सभी सपने अब पूरे होने लगे हैं। मैं इस दुनिया को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से और रचनात्मक क्षमता से ज्यादा सेवा करना पसंद करूंगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। आप अपने सपनों को पूरा होता हुआ महसूस कीजिए। थैंक यू। आप लोग अपनी आईज ओपन कर सकते हैं और आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा है उसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वैसे ये कुछ ज्यादा देर की होती है पर अभी हमारे पास समय का कंस्टेंट है, इसलिए मैं उतनी डिटेल में नहीं बता रहा। बट अगर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वाओ, अमेजिंग, कुछ भी वर्ड अगर आपको दिमाग में आता है तो यू कैन टाइप, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगले थर्सडे को आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। तो यू जस्ट राइट डाउन वॉट एवर इज योर एक्सपीरियंस। गुड, ग्रेट, क्रिएटिव, बहुत बढ़िया, हैप्पी हैप्पी, वाह, वंडरफुल। तो हमें खुश रहना है और जब हम खुश रहते हैं तो ये चीज हमारी लाइफ में होने लगती है। सेटिस्फेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अमेजिंग, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो आप लोगों ने जो आज एक्सपीरियंस किया ना, इसको अपनी जिंदगी के साथ लेके जाइए। थर्सडे जो वार है ना, वो हमने क्यों चुना है? क्योंकि थर्सडे सरस्वती माता का वार है। तो अगर हम हिंदू माइथोलॉजी से देखें तो इस दिन जब आप अपने सपनों को पूरा होता हुआ महसूस करते हैं तो उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है। और हम सब लोग अपने अपने घरों में जब हर थर्सडे ऐसा करेंगे ना तो हम लोग एक ऑरा इफेक्ट क्रिएट करेंगे। वो ऑरा इफेक्ट हम सब लोगों के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करेगा। तो अगर आप इस कोलैबोरेशन के लिए रेडी हैं, इस सर्किल के लिए रेडी हैं, तो जस्ट टाइप सी, और मैं आपके सामने फ्राइडे वाली एक्टिविटी लाऊंगा। जस्ट टाइप सी। अगर आपको लगता है कि हम सब लोग इसको करेंगे तो एक बड़ा रिजल्ट आ सकता है, ग्रेट सी, इसका मतलब हम सब लोग कोलैबोरेशन के लिए जुड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि दूसरा मेरे सपनों को पूरा होता हुआ महसूस करे और मैं दूसरों के सपनों को पूरा होता हुआ महसूस करूं, और हम मिलकर इस देश के और जो गुरु लोग हैं उनके सपनों को मिलकर पूरा कर सकें। फ्राइडे,
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, ये हम में से हर व्यक्ति कर सकता है, पर इसको करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैराडाइम है। आपको कम से कम कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको आज की डेट पे कम पसंद है, चाहे वो कोई सब्जी हो सकती है, चाहे वो कोई फ्रूट हो सकता है, चाहे वो कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो कोई शहर हो सकता है, चाहे वो कोई रोड हो सकता है, चाहे वो कोई और देश हो सकता है, या फिर वो पाकिस्तान भी हो सकता है। कोई भी जगह जो आज आपको कुछ कम पसंद है, जिसको आप डिसलाइक करते हो, आपको फ्राइडे के दिन उसकी एक क्वालिटी मन में सोचनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हर जगह एक सुंदरता को देख सकें, हर जगह जो अच्छी चीज है उसको ढूंढ सकें। जैसे ही हम अपनी नजर को बदलते हैं, पूरा जहान बदलने लगता है, दुनिया बदलने लगती है। एक बार एक आदमी को पूरी सारी चीजें ना ग्रीन ग्रीन नजर आ रही थी, हर चीज हरी नजर आ रही थी, तो एक कहावत का आविष्कार हुआ जिसका नाम था, सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखता है। तो ऐसी कहावत हमें हमारी जिंदगी में नहीं बनानी। हमें ऐसा चश्मा नहीं पहनना जिससे हमेशा ब्लू कलर दिख रहा हो। हमें हर इंसान में अच्छी चीजें ढूंढनी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। तो अगर हम अपनी लाइफ में जिस भी चीज को पसंद नहीं करते, उस चीज के बारे में एक अच्छी चीज को ढूंढेंगे, तो आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी आप में बढ़ रही है। और जब आप ऑफिस जाएंगे और आपका टीम मेंबर कोई एक चीज बना कर लाएगा ना, तो आप उस पे ना खुश होंगे, क्योंकि आपको उसमें कोई ना कोई एक अच्छी चीज जरूर नजर आ चुकी होगी। जब कभी आप अपने क्लाइंट से मिलेंगे, फैमिली में अपने फैमिली मेंबर से मिलेंगे, फ्रेंड्स में अपने दोस्तों से मिलेंगे, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आपको उसमें अचानक एक अच्छी क्वालिटी दिखने लगेगी। और फ्रेंड्स, सिर्फ अच्छी क्वालिटी देखना आपकी लाइफ में अच्छी क्वालिटी को लेकर आता है, क्योंकि जब भी मैं किसी की अच्छी क्वालिटी देखता हूँ, तो इस दुनिया में, या किसी की अच्छी क्वालिटी की बात करता हूँ, तो इस पूरी दुनिया में जो कान, जो ईयर सबसे पहले मेरी अच्छी बात सुनते हैं, वो पता है किसके हैं? मेरे खुद के। सिर्फ 4 फिंगर की दूरी है मेरे मुंह से मेरे कान की। माई माउथ इज हैविंग ओनली 4 फिंगर्स डिस्टेंस फ्रॉम माई ईयर। तो अगर मैं सिर्फ अच्छा बोलूंगा, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई ईयर सबसे पहले किसी बात को अच्छा सुनेगा, तो मेरे खुद के ईयर हैं, और ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो अगर हम लोग तैयार हैं, तो सिर्फ टाइप कीजिए एल। एल मतलब अब आपको अपनी पूरी दुनिया को, जो नया नया व्यक्ति बना है ना, वो हर चीज में बेहतर चीजों को ढूंढने वाला है। एल, लकी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एल, परफेक्ट। और हम लोग देखेंगे कि सिर्फ अच्छा ढूंढने से कैसे हमारी लाइफ में बदलाव आने लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स। कहीं भी जाएंगे, हम कोई नया आइडिया सोचेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, घर में जाएंगे, लोग हमें कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, पर कोई ये नहीं बताता सोचे कैसे। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, सोचे कैसे। वो कैसे हो सकता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स हर एक एक्टिविटी में सोच सकते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारे लाइफ में मेजर चेंज लेके आ सकती है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए सबसे पहले फ्राइडे को हमें बेसिक एक्सरसाइज से चालू करना है। इसकी डेप्थ एक्सरसाइज आगे जाके आती है, जो आप जब 1 मंथ कर लेंगे, तो हमारे सेकंड कोर्स या थर्ड कोर्स में हम आपके साथ डिस्कस करना पसंद करेंगे। बट ये हमेशा आप लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फ्राइडे को हर चीज को अलग एंगल से विजुलाइज करना है। जैसे आइज क्लोज की, और आप ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं कि जो कार है ना, वो आकाश में उड़ रही है। जो साइकिल है, वो घर के अंदर इस तरह से चल रही है कि उस साइकिल से आप टीवी देख पा रहे हैं, साइकिल के अंदर आप टीवी देख पा रहे हैं। एक स्क्रीन है जो घर में लगी हुई है, और सारे लोग घर वाले साथ में बैठे हैं, सबके पास अपने अपने चश्मे हैं, और सब अपने चश्मे से अपनी पसंद का कार्यक्रम देख पा रहे हैं। और चश्मे पे एक मीटर लगा हुआ है, जिससे आप ना उसका जो प्रोग्राम है अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचिए। आप सोचिए कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, उस पर एक मीटर लगा हुआ है, जिस मीटर को आप जैसे घुमाएंगे ना, तो आपके कपड़ों का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। वो टेम्परेचर वो हो जाएगा जो आपको पसंद है। तो एसी पे आपको डिपेंड नहीं रहना, सिर्फ अपने क्लॉथ का टेम्परेचर चेंज करना है। तो एनी बेसिक आइडिया, डोंट थिंक अपने बिजनेस का, अपने काम के आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की जगह उन बेसिक आइडियाज को सोचना चालू कीजिए जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आते हैं। याद रखिए, जब हम छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जब जरूरत पड़ती है तो बड़े चेंज आने लगते हैं, बड़े बदलाव आने लगते हैं। कोई भी घटना बड़ी एक बार में नहीं हुई है। आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप होगी, जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, इस छोटी छोटी एक्सरसाइज को करने से आप बहुत बेहतरीन बनेंगे। एक बार किसी ने कहा था कि छोटी छोटी चीजें परिपूर्णता लाती है। स्मॉल थिंग्स मेड कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस बहुत बड़ी चीज होती है।
परिपूर्णता बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वी विल फील ए बिग चेंज इन आवर ओन लाइफ। आउट ऑफ द बॉक्स के बाद हम लोग चलते हैं इसके बाद की एक्टिविटी पे, दैट इज सैटरडे एक्टिविटी। इस दिन हम लोग को, सॉरी, संडे की एक्टिविटी पे, संडे की एक्टिविटी में हम लोगों को क्या करना है, टॉकिंग टू नेचर। हम लोगों को बात करनी है प्रकृति के साथ। हम लोग पेड़ देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। हम जब इनके साथ कनेक्ट होने लगते हैं तो हम हमारी लाइफ में एक बदलाव लेकर आने लगते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी फ्लावर को चूज कर लेना है, उसके साथ बातचीत करनी है, उसके बारे में लिखना है, और उसके बारे में जो आप लिखेंगे, उसके बारे में आप जो बात करेंगे, वो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आएगा। आप अपने आसपास किसी भी ट्री को, किसी भी पत्ती को, किसी भी बर्ड को ले लीजिए, उसका एक नाम रख लीजिए और इस तरह से करना चालू कीजिए जैसे आप उससे बातचीत करते हैं। और आप बिलीव मी, जब हम नेचर से कनेक्ट होने लगते हैं ना, तो हमारी क्रिएटिविटी एनहांस होने लगती है, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर बेहतरीन चीजें नेचर नहीं बनाई है, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटिव जो है हम लोग खुद, वो भी ईश्वर का ही बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंसान जो आप खुद हो, वो भी नेचर का ही प्रोडक्ट है। तो हमें नेचर के ट्यून में आना है। व्हेन वी विल बी इन ट्यून विद नेचर, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस हमारी लाइफ में देखने लगेंगे। तो अगर हम ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं और हम इन चीजों को और ज्यादा मल्टीफोल्ड करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो टाइप कीजिए 10 मतलब इसका 10 गुना रिजल्ट अगर हमें चाहिए, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमें चाहिए, और हम चाहते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर चेंज लेकर आए, तो मैं आपको वो एवरीडे टेक्निक बताने वाला हूँ, वो एवरीडे चीज बताने वाला हूँ, जिसको अगर हम लोग करके क्रिएटिव एक्सरसाइज करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और वो है मेडिटेशन। जब हम लोग रोज ध्यान करते हैं तो हम हमारे हार्ट से कनेक्ट होते हैं, और जब हमारे हार्ट से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद हम जब क्रिएटिविटी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें बहुत मेजर चेंजेस हमारी लाइफ में आने लगते हैं। हम वो मेजर चेंजेस को हमारी लाइफ में महसूस कर पाते हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि हम सब लोग जहाँ भी हैं, हम मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लेकर आना चालू करें। और मेडिटेशन हकीकत में हम सब लोग कर रहे हैं। बचपन से हम लोगों ने सुना है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खेलो, ध्यान से ये काम करो, ध्यान से वो काम करो। तो ध्यान हमारी लाइफ में ऑलरेडी है, बस ध्यान करने का एक ऐसा तरीका हमें मिल जाए जो हमें और ज्यादा बेहतर बना सके, वो हमारी लाइफ में आगे बढ़ा सकता है। तो हमें एक्सप्लोर करना है। मैं खुद हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ, विशाल भाई हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति हार्टफुलनेस मेडिटेशन ट्राई करना चाहता है तो प्लीज लॉग इन www.heartfulness.org, या आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ सारी चीजें जो मेडिटेशन का आपको क्लासेस दी जाती है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज लेके आ सकती है और क्रिएटिविटी को आपकी लाइफ में मल्टीफोल्ड कर सकती है, ज्यादा बड़े लेवल पर ले जा सकती है, एंड यू विल सी ए वंडरफुल लाइफ जो आपकी लाइफ में आने वाली है। सो इन सब चीजों को चेक कैसे किया जाए? चेक करने का बहुत आसान तरीका है। हम में से कुछ लोगों को ना डिफरेंट चीजें करने का शौक होता है। हम लोग ड्राइंग बनाना पसंद करते हैं, कहानियां लिखना पसंद करते हैं, पोएम लिखना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी जो आज आप कर रहे हैं ना, उसको लिख लीजिए। आपके दोस्त लोग आपके बारे में आज क्या कहते हैं वो लिख लीजिए। आपके साथ वाले लोग आपके बारे में आज क्या कहते हैं लिख लीजिए। और जैसे ही आप एक क्रिएटिव एक्सरसाइज करेंगे ना, आप देखेंगे यू बिकम वंडरफुल, यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वहीं से आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने लगता है, और आप एक क्रिएटिव पर्सन के रूप में हर चीज का बेहतर जवाब देने लगते हैं, बेहतर आउटपुट देने लगते हैं, बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ा पाते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्रिएटिव वर्ल्ड। इस क्रिएटिव वर्ल्ड की तरफ आप अपनी लाइफ को लेकर जाइए। ये आपकी लाइफ में आपके अंदर बहुत मेजर चेंज लेकर आएगा। एंड मैं विशाल भैया से कहूंगा कि वो बाकी लोगों के साथ इस बारे में वापस बात करें कि कैसे हार्टफुलनेस का ये जो ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, ये हम लोगों को, हार्टफुल लर्निंग ग्रुप जो है वो लोगों की हेल्प कर सकता है, और कैसे हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सब लोगों को। आई एम रियली थैंकफुल इसमें मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए, साथ में कनेक्ट रहकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ पाने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके बारे में जवाब देने के लिए तैयार हूँ। I will be happy to answer. Please raise your hand if there is any question. And really इस awesome journey के लिए आप तैयार हो जाइए। ये आपके लाइफ में wonderful change लेकर आने वाली है। All the best. Thank you. Thank you, Amit. I mean, what energy, what presentation. I mean, fantastic, Amit. How I wish we could have more of this again and again. And I love the copyright. Everyone has copyright on this. These group members distribute his love, distribute. You know,
कई बार हम लोग we wait for the big things, you know, somebody who's into, I mean, you know, the packaging has to be great. अंदर का substance क्या है किसी को मतलब नहीं है. It is glossy, it is nice. I mean, you know, packaging is important. I'm a business guy. I understand that, but the substance is so important. अंदर की जो खूबी है वो जरूरी है. एक बार packaging 19-20 भी होगा, it's okay. Let's promote the substance. I mean, I'm amazed at this kind of talent. I have not heard anyone in my 20 years of learning who promotes creativity the way Amit is doing it. Brilliant, Amit bhai. I mean, Thank you, Bhaiya. we are blessed to have knowledge givers like you, and you already told us you will kind of, you know, take more sessions on creativity and take us step by step on this journey. अब मैं questions invite करता हूँ. If there are any questions which are you know, from the audience side, you can ask. Please proceed. Yes. I have a couple of things to share, but let's take questions लोग first. hand raise कर सकते हैं और दीपक भैया उनको शायद unmute कर देंगे. If you want to talk, we can give you the, we can unmute you and you can talk. Yeah, भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे. Whatever you feel. Okay. By the time the questions How come, can we I go know. ahead with this? इसमें हम लोगों को करना ही है कि जो आज हमने मंडे टू सैटरडे संडे तक की एक्सरसाइज सुनी है, इसको हम लोगों को 1 मंथ तक प्रैक्टिस करना है. उसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट क्रिएटिविटी फॉर सेल्फ. उसकी हम लोग मानते हैं कि 1 महीने के बाद हमें उसके बारे में एक्सरसाइज करनी चाहिए. देन वी वर्क फॉर क्रिएटिविटी फॉर रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी फॉर मनी. तो आपको जो भी लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराडाइम है आपकी लाइफ में, आप उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हो. और मैं जल्दी उससे रिलेटेड वेबिनार्स लेकर आएंगे हम लोग, जिसमें आप फेज 2 में वो सारी एक्टिविटीज समझ सकते हैं. बट अभी के लिए हम सब लोगों को आने वाले 1 महीने तक ये सारी एक्सरसाइज करनी है. और इसके बाद भी एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी. तो जब तक आप किसी पर्टिकुलर के अंदर स्पेशलाइज नहीं करते, तब तक भी आप जो रेगुलर बेसिक एक्टिविटीज हैं वो रेगुलर कर सकते हैं और ये चेंज अपने अंदर महसूस कर सकते हैं. There's one question is, you know, how do we take it forward? So, you know, we were discussing how do we do this. Just give me a few more days, group members. We are thinking, you know, that based on what your inclination is to learn first, how do we focus? How do we hold each other and take, because this is all about implementation. You know, as I said, it's about implementation, it's about application. So we'll create a method. I don't want to speak out because I have not discussed with all the team members, but we will. Just bear with us for a few days and we'll come up with a very nice interactive solution where, you know, you would have seen Deepak's programs today, and Amit is presented. Tomorrow we will be talking about the money aspect, why money, how money, and based on what your initial interest is, you know, we'll create a way of taking that interest forward in a structured way where we continue to hold each other more tightly. Okay, so just give us a little time. We are structuring that. And if you have ideas, this is how it can be done, please share. We'd love to hear you. Yes. विशाल भैया, क्या हम प्रेजेंटेशन को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं सो Yes, yes. इसको रिमेम्बर कर सके? तो जी. यस, जिन लोगों का ये सवाल था कि हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो डोंट वरी, वी विल शेयर द प्रेजेंटेशन इन ग्रुप. तो आप उसमें जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको एक्टिविटी पता लग जाएगी कि उस दिन आपको क्या करना है. We will also be sharing this video because you know, about 39-40 people attended today. So benefit of everyone, you know, we will be sharing this video. So if you have missed something, you can watch the video again. Okay. So is there any other questions? Otherwise, I have a couple of things that I wanted to check. So you know, I will share something about creativity. These are my personal experience. I have not read anywhere. I'm just sharing my experience. Creativity के लिए थोड़ा सा pain चाहिए होता है, दर्द होना चाहिए. You know, you'd have to be touched. You know, you have to be inside. There should be, I don't know, you can call it pain, you can call it love. You know, for the purpose that you are doing. For example, the kind of creativity that Amit talks about is because he has this love for the लोग creative बने. There's pain for him कि यार लोग creative क्यों नहीं है? You know, I will tell you one experience. Long time back, I had gone to Ooty. I was given some work from my mission to go and talk to the college students there, 9th standard or 9th, and उस समय value education का काम था. So we had gone there, and you know, there I came there and.
I could see so much. I don't know. I somehow got connected with those children. I was just 1.5 days only, but I got connected, and in the night started feeling the pain. That what can I give them? What can I, I'm not going to see them after 6 hours. What am I going to give them? And believe me, when I started talking next day, without any preparation, poetry started coming out. Poetry. I mean, I was shocked. I wanted to say something. The poetic language started coming out. Many times when I conduct programs, when the audience really, when the love starts flowing, you hit a dimension of creativity. So this is something that all of you all have to experience for yourself, that creativity is automatic. Sometimes I write a little bit poetry and things like that, but I know that zone that you have to be when you have to get creative, when things come, and you will know the smell of what comes from inside. It doesn't require any logic. It is just has its own foundation. It is correct. Sundar hai, Satyam Shivam Sundaram. That's it. There is no other way to say it. It's beautiful. So, and one more thing that I share from my personal experiences, in heartfulness meditation, there is, when you start going down, 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 down in your meditation, I think most of you all can also, many of you are heartfulness meditators. You can verify that there is a zone when you start getting creative ideas. If there is a business problem in the subconscious mind or a family problem, अंदर से आवाज आती है, अंदर से विचार आते हैं. There is a zone. Of course, the teachers say no, not only that, you have to still go deeper, be silent, but yes, once you have done the deep meditation, then during the day once more connect with your meditation and try to be in that zone. Look, stay in that zone and receive, away from your clatter, between the deep meditative state and where you are completely absorbed, not aware of anything, and between the clatter of the mind, there is an intermiddle space, where where you're listening to your inner self, inner thing, and where all these, that's the creative zone. So that's my input about creativity. I don't know, I'm sharing with my own experience, and there are seniors here, and who want to add more to this, you're most welcome. Just sharing, it's like a group sharing with all of you out of many years of my experience that I have in meditation. So this is it. And anything, we have 2 minutes left. So anything anybody wants to ask, or anything that has crossed anyone else's mind, or Amit, anything closing from your side? Anyone Amit want to ask anything? So this is lovely, and we will close now. And tomorrow, see you all on a very interesting session. Why money? How money? And that's going to be more open. We let people comment, even talk. It's going to be a lot of fun. So don't miss tomorrow's session. It's Sunday, and hope a bigger pack comes. More than 80 have registered. So there are people there, and hope you can remove time tomorrow being a Sunday, and let's connect again tomorrow. Thank you so much. Thank you. Let's end on time. Thank you. Thank you.